children. I hope you all are doing good. Let's start today's chapter more on Tux Paint. Chapter outline: sketching with paint tool, sub-tool box. Time for some magic bricks, blur, grass, fill and flower effects. Stamp tool, magic mirror effect, brush patterns, paint tool and lines tool. Sketching with paint tool. Children, open Tux Paint and select the new button from the tools bar. Clicking on this button will open the color boxes as starters to start a new drawing. आपको क्या करना है? Tux Paint ओपन करना है, न्यू बटन को सिलेक्ट करना है टूल बार से, फिर आपने इस बटन पे क्लिक करना है तो कलर बॉक्सेस और स्टार्टर आपके ओपन हो जाएंगे एंड नाउ यू कैन स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. लेट अस स्टार्ट ड्राइंग अ सीनरी यूजिंग द पेंट टूल. अब हमें पेंट टूल का यूज करते हुए सीनरी को ड्रॉ करना है. तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स. Bring the mouse pointer to the drawing area. The shape of pointer changes from a hand to a paint brush. Select the brown color from the colors palette and draw a few mountains at the upper part of the drawing canvas. Now choose yellow color and draw a small sun behind the mountains as shown in the given figure. Select blue color and draw a wavy line for the river as shown in the figure. तो चलिए देखते हैं क्या करना है. सबसे पहले आप मॉइस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लेके आएंगे. फिर जो पॉइंटर का शेप है वो हैंड से पेंट ब्रश में चेंज हो जाएगा. ओके फिर आप ब्राउन कलर को कलर पैलेट से सिलेक्ट करेंगे और फिर कुछ माउंटेन्स जो है ड्राइंग कैनवस जो है ना उसके अपर पार्ट में ड्रॉ करेंगे. ओके फिर आपको येलो कलर चूज करना और एक छोटा सा सन जो है आप ड्रॉ करेंगे माउंटेन्स के पीछे जैसे कि आपको दिखाया गया है. देखिए राइट. फिर आपने ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, वेवी लाइन ड्रॉ करनी है. किसके लिए? रिवर्स के लिए. ओके Sub-tool box. The sub-tool box is a unique feature of Tux Paint. For every tool in Tux Paint, we have many options of brush shapes, special effects and fonts in the sub-tool box. Sub-tool box has many options for brush patterns, shapes and font sizes. We can choose any brush shape from the sub-tool box present on the right hand side. Tux provides 50 different shapes to paint. देखिए जो सब-टूल बॉक्स है ना काफ़ी यूनिक फीचर है Tux Paint का. हर टूल के लिए ना Tux Paint में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ब्रश शेप्स के, स्पेशल इफेक्ट्स के और जो फॉन्ट्स है आपके सब टूल बॉक्स में. तो सब टूल बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ब्रश पैटर्न्स के, शेप्स के और फॉन्ट साइज के. ओके तो हम कोई भी ब्रश चूज कर सकते हैं. और आपको पता है Tux जो है 50 डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करता है पेंट करने के लिए. ओके interdisciplinary link. A painting brush is of many types. It may be made of hair of sheep, goat, ox, camel, raccoon, squirrel, wolf, pony, mongoose, etc. पेंटिंग ब्रश जो है कई तरह के होते हैं और ये बने होते हैं या तो शीप के हेयर से, गोट के, ऑक्स के, कैमल, mongoose, etc. Let us try one of the brush shapes and learn how to use it. Haze brush shape. चलिए हम एक ब्रश शेप का ट्राई करते हैं, किस तरह से इसको यूज करना है देखते हैं. Haze brush is a unique sub-tool that has a hazy appearance. We can use it to draw objects that are far away. Select the paint tool. Now select the haze brush shape and select light blue color. Draw a few clouds in the sky. Similarly, select the green color and draw the trees as shown in the figure. देखिए haze brush ना आपको काफ़ी unique sub-tool है जो एक हेजी अपीयरेंस देता है. हम इसको यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए जो काफ़ी दूर होते हैं. तो देखिए आपको करना क्या है. सबसे पहले पेंट टूल को सिलेक्ट किया, फिर आप सिलेक्ट करेंगे हेज ब्रश शेप को और फिर आप इसमें सिलेक्ट करेंगे लाइट ब्लू कलर. फिर कुछ क्लाउड्स आप ड्रॉ कर देंगे स्काई पे. इसी तरह से अपने ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और ट्रीज को ड्रॉ करना है. राइट. ग्रेट. वी हैव लर्नड हाउ टू यूज अ हेज ब्रश शेप. There are many more amazing brush shapes available in the sub-tool box. तो देखिए हमने यूज़ कर लिया किस तरह से हेज ब्रश शेप को यूज़ करना है. तो बहुत सारे ब्रश शेप से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं. राइट. Time for some magic. The most special feature of Tux Paint is a magic tool. We can use the magic tool to draw and give amazing effects to a picture. अच्छा देखिए मैजिक टूल की हेल्प से ना हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपनी पिक्चर को ना अमेजिंग इफेक्ट देख सकते हैं. कैसे? चलिए देखते हैं. Select the magic tool. The pointer will change to a magic font. Now we will apply some magical effects to our drawings.
सबसे पहले हम मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंटर देखिए आपका कैसे चेंज हो जाएगा, मैजिक वॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ओके, फिर हम कुछ मैजिकल इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे हमारी ड्राइंग पे। ब्रिक इफेक्ट्स, सिलेक्ट द ब्रिक्स सब टूल। द ब्रिक्स इफेक्ट फिल्स अ पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इनटू द पिक्चर। Draw a hut using the lines tool and apply bricks effect as shown in the figure. Observe the change in the image. आपको क्या करना है, ब्रिक्स को सिलेक्ट करना है सब टूल से, फिर जो ब्रिक इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो पैटर्न ऑफ जो ब्रिक्स होंगे ना उसको फिल कर देगा जिस भी पिक्चर में आप डालना चाहते हैं। तो जैसे आपने एक हट ड्रॉ की, फिर आप यूज़ करेंगे हट लाइन टूल्स का हट बनाने के लिए, फिर ब्रिक इफेक्ट जो है उसको अप्लाई कर देंगे और देखिए इस तरह से जो ब्रिक्स हैं वो हमारे हट में फिल हो जाएंगी। ओके, फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इमेज में क्या चेंजेस आए। ब्लर इफेक्ट, दिस सब टूल ब्लर्स द एरिया ऑफ द पिक्चर ऑन व्हिच दिस इफेक्ट इज अप्लाइड। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। किसी भी एरिया को पिक्चर की ब्लर करने के लिए आप ब्लर इफेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स। सिलेक्ट द मैजिक टूल एंड देन द ब्लर इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स. Apply it all over the boundary of the mountains and see how it looks. You can use a blur effect as many times as you like. आपको मैजिक टूल सेलेक्ट करना है अगेन, फिर ब्लर इफेक्ट। ओके, फिर आप जो है माउंटेन्स की बाउंड्री में इसे अप्लाई कर देंगे ऑल ओवर द बाउंड्री। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये चेंज हो गया। ओके, आप ब्लर इफेक्ट को जितने मर्जी टाइम आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। Every time you use this tool, the image will fade a little more than the original. हर बार आप जब इस टूल को यूज करेंगे तो इमेज जो है वो ओरिजिनल वन से फेड होती जाएंगी। ओके, ग्रास इफेक्ट, इट इज यूज्ड टू गिव ग्रास इफेक्ट इन अ ड्राइंग। क्लिक द मैजिक टूल एंड सेलेक्ट द ग्रास इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स. Select green color from the colors palette. Now draw some grass by clicking on the canvas as shown in the figure. आप करेंगे मैजिक टूल पे क्लिक एंड ग्रास इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे सब टूल बॉक्स में से, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे कलर पैलेट में से, फिर आप ग्रास ड्रॉ करेंगे कैसे, बाय क्लिकिंग ऑन द कैनवस। ओके, और इस तरह से आपकी जो ग्रास है वो आपकी एड ऑन हो जाएगी। ओके, फिल इफेक्ट, इट इज यूज टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर को फिल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। द मैजिक टूल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. Select the fill tool and choose blue color from the colors palette. Now bring the magic wand over the river and click on it. The blue color will be filled in the river. Select brown color and click on the mountains to fill brown color in there. देखिए आपका मैजिक टूल सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिल टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्लू कलर चूज करेंगे हम कलर पैलेट से, मैजिक वॉन्ड को लेके जाएंगे हम रिवर के ऊपर और क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, ब्लू कलर रिवर में फिल हो जाएगा। फिर हम ब्राउन कलर को सिलेक्ट करेंगे, माउंटेन्स में क्लिक करेंगे तो देखिए माउंटेन जो है वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे, राइट। फ्लावर इफेक्ट, इट इज़ अ रेडी मेड ऑप्शन टू ड्रॉ फ्लावर्स ऑन द कैनवस। अगर हम फ्लावर्स ड्रॉ करना चाहते हैं ना कैनवस में तो ये रेडी मेड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। Click the flower tool, which is a sub tool of the magic tool. Select yellow color from the colors palette. Bring the magic wand over the grass. Keep clicking on the grass area to add flowers on it. Likewise, select different colors to add colorful flowers on the grass. देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्लावर टूल को क्लिक करना है जो कि मैजिक टूल का सब टूल है। फिर आप येलो कलर सेलेक्ट करेंगे कलर पैलेट से, मैजिक वॉन्ड को लेकर आएंगे ग्रास के ऊपर, फिर आप क्लिक करेंगे ग्रास एरिया में फ्लावर्स को ऐड करने के लिए। फिर इसके बाद डिफरेंट कलर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिस भी कलर की आपको फ्लावर्स चाहिए उस पर। ओके, स्टैम्प टूल, इट इज अ सिंपल टूल यूज टू पुट अ स्टैम्प एंड एड इमेजेस इन योर ड्राइंग. Tux Paint already has some inbuilt stamps. Additional stamps can be downloaded from the following website: www.tuxpaint.org/download/windows. Further, select the link Tux Paint Stamp 2009-6-28-32 installer exe. ओके, अब देखिए आपका जो स्टैम्प टूल है काफ़ी सिंपल टूल है जिसको यूज़ किया जाता है स्टैम्प्स को रखने के लिए, पुट करने के लिए या अपनी ड्राइंग में इमेजेस को ऐड करने के लिए। तो देखिए टक्स पेंट में ऑलरेडी इनबिल्ट स्टैम्प्स है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एडिशनल स्टैम्प्स को डाउनलोड करना तो ये आपको वेबसाइट दी गई है और आपको एक लिंक भी दिया गया है। ओके, और installing the stamps file we can see various categories of stamps in the sub tool box. तो
तो जब आप स्टेम फाइल को इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज नजर आएंगी स्टेम्स की सब टूल बॉक्स में। सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, क्लिक द स्टेम टूल, चूज एनी वन स्टेम फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। For more stems, click the right or left arrow, select the fish stem. You can also increase and decrease the size of the stem using the slow bar just above the colors palette in the subtool box. Now click on the canvas and stem will be pasted. Likewise, select the hut stamp and paste on the canvas. देखिए आपको क्या करना है, आपने स्टेम टूल पे क्लिक करना है, कोई भी स्टैम्प आप चूज कर सकते हैं सब टूल बॉक्स में से। और ज़्यादा स्टैम्प्स के लिए आपको क्या करना है, या तो आप लेफ्ट या फिर राइट एरो पे आप क्लिक करेंगे, आप फिश स्टैम्प को सिलेक्ट करेंगे। आप स्टैम्प का साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं स्लो बार का यूज करते हुए, जो आपके कलर्स पैलेट के जस्ट अबव है। ओके, फिर आपने कैनवस पे क्लिक करना है, आपकी स्टैम्प वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ओके, इसी तरह से आप हट स्टैम्प को भी पेस्ट कर सकते हैं कैनवस पे। Magic mirror effect. We can also use the mirror image of the selected stem by choosing the mirror option, mirror below the right and left arrow keys in the sub toolbox. Click the mirror button. Now paste the selected stamp besides the previous stamp. देखिए आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, आप mirror image का यूज करेंगे, जो आपकी selected stamp है, आप कैसे करेंगे, mirror option को चूज करना है जो आपके बिलो होगी राइट एंड लेफ्ट एरोस के सब टूल बॉक्स में। फिर मिरर बटन पे क्लिक करेंगे, फिर जो सिलेक्टेड स्टैम्प है उसको प्रीवियस स्टैम्प के बिसाइड आपने पेस्ट करना है। ओके, ब्रश पैटर्न्स पेंट टूल. Tux Paints give an option to draw beautiful patterns using the paint tool. We can select any of the pattern shapes from the sub toolbox. Let us see how many beautiful patterns we can make. देखिए टक्स पेंट में काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप ब्यूटीफुल पैटर्न्स बना सकते हैं पेंट टूल की हेल्प से। तो हम कोई भी पैटर्न शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं सब टूल बॉक्स में से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ब्यूटीफुल पैटर्न हम बना सकते हैं। Select the paint tool. Now you will see the brushes sub tool box on the right hand side. Select the filled circle shape and choose brown color from the palette. Draw the trunk of a tree. Scroll down and select the vine shape. Select green color from the colors palette. Move the pointer to the drawing area and draw the leaves by clicking the trunk. You will see a beautiful tree as shown in the figure. Also, draw the grass with the help of magic tool. Similarly, select other brush shapes and see how many different patterns you can draw. तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको ब्रशेस नजर आएंगे सब टूल बॉक्स में राइट हैंड साइड। फिर आपने क्या करना है, जो फिल्ड सर्कल शेप है उसे सिलेक्ट करना है, ब्राउन कलर को चूज करना है पैलेट में से और आप क्या बनाएंगे, ट्री का ट्रंक। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, वाइन शेप को सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन कलर चूज करेंगे कलर्स पैलेट में से। फिर आप पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पे लेके जाएंगे, लीव्स ड्रॉ करेंगे बाय क्लिकिंग द ट्रंक। फिर आपको एक ब्यूटीफुल ट्री नजर आएगा जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसके अलावा आप ग्रास भी ड्रॉ कर सकते हैं मैजिक टूल की हेल्प से। इसी तरह से आप दूसरे ब्रश शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और जितने मर्जी आप डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लाइन्स टूल. Lines tool is used to draw straight lines and straight patterns. It works quite similar to the paint tool. देखिए लाइन टूल को आप यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पैटर्न को बनाने के लिए, और ये जैसे पेंट टूल आपका काम करता है ना, ऐसे ही करता है। ओके, द लाइन्स टूल हैज़ द सेम ब्रश शेप्स इन द सब टूल बॉक्स एज इन द पेंट टूल. द ओनली डिफरेंस बिटवीन पेंट टूल एंड लाइन्स टूल इज द ऑर्डर इन विच द ड्राइंग इज डिस्प्लेड. ओके, अब लाइन्स टूल में ना सेम आपके ब्रश शेप्स होते हैं जो आपके सब टूल बॉक्स में जैसे कि पेंट टूल में थे। ओनली डिफरेंस पेंट टूल और लाइन्स टूल के बीच में आता है कि किस तरह से जो इनकी जो ड्राइंग है डिस्प्लेड है। ओके, while using the paint tool you can see the image which you are drawing at that moment. On the other hand, while using lines tool you will see only a straight line from the starting point to the ending point. The pattern appears only after you complete the line and release the left mouse button. अच्छा देखिए, जब आप पेंट टूल यूज़ करते हैं ना तो आपको इमेज नज़र आती है जो आप ड्राइंग कर रहे हो। ओके, जबकि लाइन्स टूल में क्या होता है कि आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। ओके, तो शेप आपको कब नज़र आएगा, जब आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे और लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करेंगे। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ पैटर्न यूजिंग द लाइन्स टूल. तो चलिए अब लाइन्स टूल की हेल्प से हम एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं।
Select the lines tool and choose any pattern from the sub toolbox. Draw a straight line as shown in the figure. When you release the left mouse button, you will get a straight pattern in place of that line. If you draw an inclined line, you will find an inclined pattern. तो देखिए, सबसे पहले आपने लाइन्स टूल को सिलेक्ट करना है. कोई भी पैटर्न आप चूज कर सकते हैं, वो आप चूज करेंगे सब टूल बॉक्स में से. फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. फिर जैसे ही आप लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करेंगे ना, एक स्ट्रेट आपको पैटर्न मिलेगा उस लाइन की प्लेस पे. ओके, और अगर आप क्या करेंगे, आप इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको एक इंक्लाइंड पैटर्न मिलेगा. ओके, नोट, अ लाइन टूल हैज द सेम ब्रश शेप्स इन द सब टूल बॉक्स एंड इन द पेन टूल. जो लाइन टूल है उसमें सेम ब्रश शेप्स होते हैं आपके सब टूल बॉक्स में जैसे कि आपके पेन टूल में होते हैं. Note, you can view all the saved files in the form of a slideshow by clicking the slides button. Click on the play button to view the slideshow. The slide view shows every image in the form of a big slide. At the bottom right side of the screen, you will find the back button. Click on it to go back to the previous window. देखिए, आप जितनी भी saved files हैं ना उनको देख सकते हैं स्लाइड शो की फॉर्म में by क्लिकिंग ऑन स्लाइड्स बटन. ये देखिए स्लाइड्स बटन है ना, इस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप स्लाइड शो व्यू करेंगे. ओके, स्लाइड व्यू जो होते हैं ना, वो हर इमेज को दिखाते हैं एक बिग स्लाइड की फॉर्म में. और आपके स्क्रीन के बॉटम में राइट साइड में आपको एक बैक बटन मिलेगा. देखिए जैसे आपको ये नजर आ रहा है. फिर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे गो बैक में टू द प्रीवियस विंडो. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.